Hello everyone, my name is Shreya Juneja and I welcome you all to Birla Navya. Hope all of you are doing safe at home. Only for the purposes of this video, I'll be removing my mask. I'm pleased to show you 3 of the 5 blocks at Birla Navya. We're launching one of our most premium blocks, Amuda 1, 2 and Drisha. These are designed to give you the benefits of premium floor residences along with the safety and convenience of urban living. Every aspect of Birla Navya is meticulously crafted to sustain the test of time. All 3 blocks Amuda 1, 2 and Drisha 1E have a 60-meter road access with 12-meter service lane on both ends. Amuda 1 and 2 is built on 2.4 hectares of land with a total of 228 premium floor residences, and Drisha 1A is built on 0.8 hectares of land with a total of 72 premium floor residences. All in together, all the 3 blocks offer 2 BHK, 3 BHK, 3 BHK plus utility and 4 BHK plus utility premium floor residences. The township will be a low-density development with low-rise premium floors. At the heart of Birla Navya will exist one of the largest clubhouses of Gurugram, Destination Hive, proposed across 0.78 hectares of land. It will be a hub of curated experiences on 13,935 square meters. For the residents of Birla Navya and Anantaraj Estate, it will not be just a clubhouse, it will be the next big thing in Gurugram. Let's head to the magnified scale of the 3 phases and see what it looks like. Amuda and Drisha have premium floor residences which has stilt plus 4 floors. A basement for the first floor residences, a stilt with parking for all with a lobby, 4 floors going up to the terrace. A pair of 2 plots have been designed together wherever possible to build 8 floor residences. We have also provided a seamless combined pedestrian access to both the plots, the lobby and to the parking space. The well-lit lobby experience includes 2 large lifts, each with a capacity of up to 8 passengers only for the 8 families going from the basement floor right up to the terrace floor. Even the staircase of both lobbies have been combined to make it a wider and a grander experience. Finally, there is 1 lift for 4 apartments in the corner plot where the lobbies are not combined. Uniqueness is a part of every element here, from stone-cladded facade to the glass railings in most balconies to the massive windows in master bedroom to the limited usage of paint. Everything is built for the long run. If you notice carefully, most of the balconies do not look into each other. Most of them are tucked into the facade to protect the privacy of our residents. The first and 4th floor residences have a few additional benefits. They have a private basement and terrace respectively. The terrace boasts of a private space with wooden looking tiles and green turf, while the basement boasts of a sunken court. The rear area of the plot has 3 to 6 meters of space which is usually left unaltered, but at Birla Navya it brings a charm to the plot. They have converted the back area into seamless backyard greens, dotted with seating pavilions, kids play areas, reflexology pathways and a lot more. At Birla Navya, we take the security of our residents very seriously. In association with Max Security Consultants, an Israeli security consultancy expert, we have designed a multi-tier security for this gated community. Each block has a common entry and exit point with trained security professionals, boom barriers, car scanners and CCTV cameras. We have also installed panic alarm buttons near kids' play areas which sends a signal to the control room in case any emergency arises. The 3rd level of security is the ground floor lobby, which is also access controlled. Only the residents are granted access with their card or with their biometric readings. And the final level of security is at the apartment, which is also with smart lock or video door phone. Now let's take a look at the floor residence layouts. As I mentioned earlier, every aspect of Birla Navya is very thoughtfully designed and we see that come to life here. When you enter a typical 3 BHK unit, you don't directly enter into the living and dining area. A foyer provides you the extra privacy when someone is at the door. The living and dining area is divided into 2 public spaces, each with its own balcony space to facilitate cross ventilation. The master bedroom comes with a master wardrobe with an attached washroom and access to the main balcony. The master bedroom also boasts of a large glazing which covers 80% of the wall and allows ample sunlight into the bedroom. The second bedroom comes with an attached washroom and is also attached to the main balcony. The 3rd bedroom comes with a private balcony and a common washroom shared with the living dining area. The kitchen comes with a utility balcony and is designed in a very modern parallel slab in comparison to the L-shaped or the U-shaped design. On noticing carefully, you'll see that all the 3 bedrooms are on 3 corners of the plot and there is no wall sharing between any of the rooms or any passive space that is wasted in the layout. All the 3 bedrooms in total comes with 4 balconies.
every room has access to one balcony. The main balcony is accessible from the first room, the master bedroom and the living area. The third bedroom comes with its private balcony, a small balcony with the dining area, and the kitchen comes with its utility balcony. All in all, it facilitates cross ventilation and a fresh and breezy environment in the floor residence. But the journey doesn't end here yet. The floor residences come with imported marble flooring in living and dining area, laminated wooden flooring in all the 3 bedrooms, furnished modular kitchen with chimney and hob, and VRF air conditioning with high wall units. So this is what we offer at Birla Navya. हाय, आज हम बिरला नाव्या आए हैं सेक्टर 63 गुड़गांव में। ये गोल्फ कोर्स रोड से काफ़ी पास है। यहाँ से अगर हम चलते हैं गोल्फ कोर्स रोड की तरफ तो हार्डली एक रेड लाइट मिलता है, और यानी अगर ट्रैवलिंग डिस्टेंस मानूँ तो रफली 5 मिनट का आइडल ड्राइविंग सिचुएशन में 5 मिनट का टाइम लगना चाहिए यहाँ से गोल्फ कोर्स रोड। तो इस वजह से ये जो एरिया है ये बहुत हैपनिंग है। तो यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स है बिरला नाव्या के प्रोजेक्ट में वो आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ मेरे टीम मेंबर हैं मोहित जी। हम साथ में चल के आपको ये सारा प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं और इसके बारे में डिटेल में सब कुछ बताने वाले हैं। आइए आपको अंदर लेकर चलता हूँ। मोहित, अगर मैं सेक्टर 63 की बात करूँ और स्पेसिफिकली नाव्या प्रोजेक्ट की बात करूँ तो इसके यूएसपीज़ क्या हैं? पहली बात तो हम लोकेशन की बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले जो ये लोकेशन है सेक्टर 63 जी, ये अपने आप में एक प्रीमियम लोकेशन है। ओके। प्रीमियम लोकेशन इसलिए नहीं है कि ये सेक्टर 63 है, ये बिकॉज ऑफ दिस क्लोजेस्ट टू योर गोल्फ कोर्स रोड। Okay. जो एग्जिस्टिंग गोल्फ कोर्स रोड है जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ ऑपरेशनल है, जो सारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज तो वहीं पे है। हाँ जी, सब कुछ यहाँ पे है। इसके नियर बाय जितने भी आप डेवलपमेंट देख रहे हो वो हाई क्लास डेवलपमेंट है। तो जो लोकेशन है ये ऑलरेडी कनेक्टेड है पोश एरिया से गुड़गांव के, जिसको हम गोल्फ कोर्स रोड बोलते हैं। इसको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का पार्ट बोलेंगे। ये सीधा सीधा आपका गोल्फ कोर्स रोड और एक्सटेंशन रोड से कनेक्टेड है। ओके। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, बिरला अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है। नो डाउट यहाँ पे आपको किसी भी टाइप की इनसिक्योरिटीज़ नहीं होंगी, किसी भी टाइप का क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स गुड़गांव में बनते रहते हैं और बन चुके हैं और बनेंगे भी आने वाले टाइम में। बट अगर ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का भी बेनिफिट ले सकते हैं। एक लो राइज में जो वेंटिलेशन, सनलाइट जिसकी आजकल रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा, और लो डेंस एरिया में और पोल्यूशन फ्री एरिया में, सिटी से थोड़ा सा बाहर और अरावलीज की वैसिनिटी में आपको घर मिलता है यहाँ पे। हाँ, मैंने सुना है कि एक तरफ तो ये गोल्फ कोर्स रोड के बिल्कुल नज़दीक है। यस। और यहाँ से अगर बालकनी का व्यू देखें तो वो अरावली फेसिंग है। बिल्कुल, यहाँ पे एक्चुअली ये गुड़गांव का जो लास्ट सेक्टर है इस एरियाज़ में, और इसके पीछे सिर्फ आप देख रहे हैं तो अरावलीज है। अगर मैं वहाँ पे, अभी तो खैर बहुत फॉग है, अगर मैं उस एंड में दिखाऊं तो वहाँ पे अरावलीज का व्यू मिलता है। बिल्कुल, अरावलीज का व्यू मिलता है। तो उससे क्या है ना, आपका पोल्यूशन कंट्रोल हो जाता है, नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल हो जाता है। आपको एक रिजॉर्ट वाली फीलिंग आती है आपको यहाँ पे। आपको सिटी के पास भी हो, सिटी के अंदर भी हो, और आपको रिजॉर्ट वाली फीलिंग भी आ रही है। तो इससे आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलते हैं, हेल्थ वाइज भी, कनेक्टिविटी वाइज भी, और जो भी आपको एक पर्सनल घर के अंदर चाहिए चीज़ें वो सब। और ये प्रोजेक्ट जो है ये रेरा में अप्रूव्ड है? बिल्कुल 100% रजिस्टर्ड है रेरा? बिल्कुल रजिस्टर्ड है। और ये लैंड एक्चुअली बहुत पहले से डेवलप हो रही है। ये प्रोजेक्ट की प्लानिंग अब आई है हमारी, तो हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। हमने जो भी पहले भी प्रोजेक्ट बनाए हैं वो सारे हमारे। तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं। बिल्कुल, चलिए। तो ये इनका मेन गेट है, और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ से अगर हम स्ट्रेट चले जाएंगे तो लगभग 1 किलोमीटर के बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आ जाता है। वहाँ पे SPR भी बोल सकते हैं। और वहाँ से राइट लेते ही जो पहला रेड लाइट आएगा वो गोल्फ कोर्स रोड है, जो सबसे प्राइम लोकेशन है गुड़गांव का। और यहाँ से हम अंदर चलते हैं। आपको ऑलरेडी ये थोड़ा सा रिजॉर्ट जैसा फीलिंग दिख रहा होगा। और यहाँ से अंदर चलने के बाद मैं आपको दिखाऊं तो ये तो सेल्स ऑफिस है इसका। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये इनका फ्लोर बना हुआ है, सैम्पल फ्लैट। तो अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कैसे बाकी प्रोजेक्ट से डिफरेंट है। सो मोहित, यही है हमारे लग्जरी अपार्टमेंट्स या फ्लोर्स? जी बिल्कुल, जो आप ये फसाड देख रहे हैं ये एक्चुअली सैम्पल है। ये जितने भी आपके फ्लोर्स बनेंगे इस तरीके से बनेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी है। उसके बाद आपको अपार्टमेंट वाली फीलिंग भी आती है। वहाँ पे आपको सिक्योरिटी सिस्टम और पार्किंग सिस्टम वेरी इजी टू एक्सेस। बट मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये पूरा इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक वो एक पूरा फ्लोर है या डिवाइडेड है? एक्चुअली ये 2 प्लॉट्स हैं जी। जनरली जो हम जो बिल्डर फ्लोर बनाते हैं, हाँ, तो आपको देखने से पता चल जाएगा बिल्डर फ्लोर है। उनकी सेपरेट एंट्री होती है। ओके, ठीक है। यहाँ पे दोनों को क्लब कर दिया गया है। उससे आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आपको एक ग्रैंड एंट्रेंस मिलती है। अच्छा, इस कॉमन स्पेस को बड़ा करने के लिए आपने दोनों को मर्ज कर दिया आपस में? यस।
ओके। तो ये अगर कॉमन वॉल होती तो इतना ग्रैंड एंट्रेंस नहीं होता। और जी। जो लिफ्ट लॉबी है, जैसे हम एक हाई राइज लग्जरी अपार्टमेंट में एंटर करते हैं तो उस टाइप से आपको एंट्रेंस की फील है। ओके, एंड ये नीचे स्टिल्ट पार्किंग। यस, पार्किंग में भी आपको हैसल नहीं है कि आपको घूम के जाना पड़ेगा, बेसमेंट में जाना पड़ेगा हाँ, इधर से। आप डायरेक्ट आइए, इजी आप पार्क कीजिए यहाँ पे, लिफ्ट एरिया में जाइए और सीधा आप अपने अपार्टमेंट में। बट जैसे मैंने देखा है मोहित की जितने बाकी फ्लोर्स हैं, अगर उसमें स्टिल्ट में पार्किंग करते हैं तो जैसे फर्स्ट फ्लोर की पार्किंग है, फिर सेकंड फ्लोर की पार्किंग है, तो अंदर वाली गाड़ी फर्स्ट फ्लोर की होगी, उसके बाद पीछे वाली सेकंड फ्लोर की होगी, तो लोग डिस्टर्ब होंगे, बार बार उनको आके गाड़ी निकालना हटाना होगा। यहाँ पे उसको कैसे मैनेज किया आपने? ये एक्सपीरियंस हम ले चुके हैं, हमने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो हमने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया है, छोटी छोटी चीज़ों को, लाइक जैसे पार्किंग वाला इशू है तो हमने जो पार्किंग दी है पर स्लॉट, वो बैक टू बैक पार्किंग दी है। मतलब अगर आपका अपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर पे है तो फर्स्ट फ्लोर के लिए जो पार्किंग होगी वो बैक टू बैक होगी, स्लॉट बाई स्लॉट। तो आपकी पार्किंग में दूसरे की इंटरफेरेंस नहीं होगी, आप दो गाड़ियाँ ईजिली एक्सेस। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये दो पार्किंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये वाला पार्किंग है और इसके आगे वाला पार्किंग है, तो ये दोनों स्लॉट मेरी होगी? यस, दोनों स्लॉट आपकी होगी, यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। हाँ। ये अलग अपार्टमेंट की होगी, वो अलग अपार्टमेंट की होगी। अगर 3 फ्लोर हैं, 4 फ्लोर हैं तो ये इतना सफिशिएंट पार्किंग है कि इसमें 2 SUV भी पार्क हो जाए आराम से? यू कैन से एनी काइंड ऑफ SUV, जी, बिगेस्ट कार यू कैन पार्क हियर। ओके, तो मैं एक बार चारों तरफ आपको घूम कर दिखा देता हूँ। यस। ये पार्किंग है, फिलहाल ये टेम्पररी स्ट्रक्चर है, राइट? ये ओरिजिनल नहीं है? ये ओरिजिनल नहीं है। मैं आपको एक बार चारों तरफ घूम कर दिखाता हूँ। ये देखिए, तो बड़ी वेल वेंटिलेटेड है। और ये डिवाइडर्स किस लिए है कि इससे आगे गाड़ी ना जा पाए, जैसे मॉल्स में होता है? यस, राइट, एग्जैक्टली। ओके। डैमेज ना हो चीज़ें, पिलर्स वगैरह जो भी है, आपकी गाड़ी को नुकसान ना हो, तो उसके लिए पूरी ओके। और जैसे सामने हमें खाली स्पेस दिख रहा है, तो इसी तरीके का स्पेस होगा हर अपार्टमेंट के आगे और पीछे? बिल्कुल। देखिए, वो ड्रॉप ऑफ सबसे ज़रूरी है आज की डेट में। जी। अगर आप गाड़ी, जैसे मल्टीपल अपार्टमेंट्स में होता है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में होता है, आपको एक प्रॉपर ड्रॉप ऑफ मिलता है। जी। आपके घर में एल्डर्स हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको आप ड्रॉप करते हैं, वो अपने घर में चले जाते हैं, फिर आप पार्क करके आते हैं। ओके। तो आपको यहाँ पे ड्रॉप ऑफ की फैसिलिटी मिलती है। तो अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं। अब अगर मैं देखूँ तो बेसिकली यहाँ से मेन एंट्रेंस है। एग्जैक्टली सेम आपको ऐसी ही फीलिंग आएगी जब आप एंटर करेंगे। मैं देख सकता हूँ जैसे ये G09 है और G08 है, और बीच में ये क्या फसाड है? ये फसाड एक्चुअली टिपिकल जो हम फ्लोर्स बनाते थे पहले, बिल्डर फ्लोर्स जो बनते थे जी, तो वो डिवाइडेड होते थे। उनको मेंटेन करना, अगर एक फसाड मेंटेन है, दूसरा फसाड मेंटेन नहीं है, तो ओड लगता था। करेक्ट। तो यहाँ पे जो हमने फसाड लगाया, तो हमने स्टोन फसाड लगाया है यहाँ पे। ओके। इजी टू मेंटेन, इजी टू वॉशेबल। तो इससे क्या, एक तो सिमिट्री और एक फसाड का जो ब्यूटी है वो कभी ख़राब नहीं होती है। ऑल राइट। जो भी आपने यहाँ पे पार्टीशन बनाया है, वो आपने ग्लासेस का पार्टीशन बनाया है, सो दैट नेचुरल लाइट का भी फ्लो हो इजीली। नेचुरल लाइट हो, प्रोजेक्ट की ब्यूटी खराब ना हो, एक्सेसिबल हो, सब चीज़ें हैं, बहुत मैटर करता है ग्लास। मोहित, जब हम लॉबी वाले एरिया में हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए क्या है? मतलब मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड अलाइंड है, सिक्योरिटी है, बट इसके अलावा भी कुछ है सिक्योरिटी फीचर्स? यस, यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 टायर सिक्योरिटी है हमारी। वो मॉडर्न तरीके से है, वो ऐसा नहीं एक्सेसिबल कि आप गेट है, आपको रजिस्टर पे एंट्री करनी है, फिर आपको डोर फोन पे कॉल करना है, फिर वो एक्सेस करेंगे, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अच्छा, ये वाला ऑप्शन राइट, सीधा एक्सेसिबल फ्रॉम योर अपार्टमेंट। ओके। एक VDP स्क्रीन आपके घर पे भी होगी। ओके। अगर यहाँ पे आप कोई भी आपका फ्लोर वाइज आप बेल पुश करते हैं तो आपके वहाँ पे स्क्रीन पे आप बोल रहे हैं इसमें फ्लोर नंबर्स लिखे होंगे 1 2 3 4, और ऐसे ही इसके दूसरे तरफ में भी होगा? यस। अगर यहाँ पे आप जो भी डोरबेल बजाते हैं, सीधा आपको जो अपार्टमेंट के अंदर, आपके फ्लोर के अंदर जो लगा हुआ VDP, वहाँ पे आप दिखोगे वहाँ पे जी, तो वो अगर आपको अलाउ करेंगे तभी आप अंदर जा सकते तो तभी ये डोर एक्सेस जो है ये तब खुलेगा? ये तभी खुलेगा, उससे पहले आपकी एंट्री नहीं होगी। आपके गेस्ट है, अगर आप खुद से आप एंटर करना चाह रहे हो तो यू हैव टू हैव एक्सेस कार्ड, आपको टच करना, उसके बाद ही आप एंटर कर सकते हैं। ओके, वो रेसिडेंट्स के लिए है? यस, वो residents। ओके। मोहित जी, ये जो ग्लासेस यहाँ पे दिख रहे हैं, जो एक्सटर्नल फसाड है यहाँ पे ग्लासेस का, ये टेम्पररी नॉर्मल ग्लासेस हैं या ये टफ एंड ग्लासेस हैं? ये नॉर्मली नहीं है, टफ एंड ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है। उससे आपको प्रोजेक्ट की एक तो नेचुरल सनलाइट जाता है, पूरा सनलाइट आती है और दिखने में भी सुंदर दिखती है। बट सेफ्टी वाइज ये टफ एंड ग्लास है? बिल्कुल टफ एंड ग्लास है, और नॉइज रेजिस्टेंट भी है? नॉइज रेजिस्टेंट है। ओके, अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं। मैं एक बार चारों तरफ घूम कर पहले दिखा देता हूँ। ये मेन एंट्रेंस, ये एक तरफ का लिफ्ट लॉबी, एंड अगर मैं घूमूँ तो हम यहीं से हमने एंटर किया था। और यहाँ पे भी आप देखें तो ऊपर CCTV तो ऑलमोस्ट ये एक नॉर्मल फीचर है कि हर ही जगह होता है अब। यस, बट वो एक्सेसिबल भी होना जरूरी है 24/7 जी। इनका फायदा है।
और अच्छा, एक्सेसिबल होने से मतलब है कि आप सीसीटीवी जो यहाँ के रेसिडेंट हैं वो अपने घर से भी एक्सेस कर पाएंगे या सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स ही देख पाएंगे? नहीं, आप अपने घर से भी कर सकते हैं, नॉट इवन दिस एरिया। आप अपने अपार्टमेंट से लॉबी, एंट्रेंस, पार्किंग ये तो सब देख ही सकते हैं। किड्स प्ले एरिया देख सकता हूँ यानी? इसके अलावा कुछ कॉमन एरियाज हैं, लाइक जब अगर आपके बच्चे खेल रहे हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मेन एंट्रेंस वगैरह सब जी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नीचे भी रास्ता जा रहा है और यहाँ से ऊपर भी जा रहा है, ये तो बड़ा ही ग्रैंड है। बिल्कुल। मोहित, इस टाइम पे हम स्टेयर केस के पास है और हम मेन लिफ्ट लॉबी के पास एंटर कर चुके हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि ये दोनों तरफ लिफ्ट जो दिख रहा है मुझे, एक यहाँ पे लिफ्ट और एक यहाँ पे लिफ्ट, ये ब्रांडेड लिफ्ट है? बिल्कुल, ये ऑटोमेटेड ब्रांडेड लिफ्ट्स हैं। और इसमें कितना पैसेंजर जा सकते हैं एक बार में? 7 to 8 पैसेंजर्स। 7 to 8 पैसेंजर्स एक बार में जा सकते हैं इसमें। ओके, अब हम कौन सा फ्लोर देखेंगे? हम पहले ग्राउंड फ्लोर देखने वाले हैं। ग्राउंड फ्लोर तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो स्टिल्ट एरिया है। हम पहले बेसमेंट देखने वाले हैं, फर्स्ट फ्लोर या टेरेस, क्या दिखाने वाले हैं आप? मैं आपको इस सैंपल से पूरा जो भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट फ्लोर के साथ हम आपको बेसमेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके। और फोर्थ फ्लोर के साथ हम टेरेस आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके। जो 20 के जो फ्लोर्स हैं उनका जो लेआउट है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा इस चीज़। तो मतलब ऊपर के जितने भी फ्लोर्स हैं उनका लेआउट ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट कि आपको फर्स्ट फ्लोर के साथ बेसमेंट मिलता है, एडिशनल स्पेस। Yes. और टॉप फ्लोर यानी कि फोर्थ फ्लोर के साथ आपको टेरेस मिलता है। एग्जैक्टली। ओके, तो हम मतलब सैंपल देखने वाले हैं, प्लस हम बेसमेंट भी देखने वाले हैं और टेरेस भी देखने वाले हैं। ओके, काफ़ी ग्रैंड सीढ़ी का एंट्रेंस है ये, अगर मैं देखूँ तो स्टेयरकेस। जनरली यहाँ पे वॉल होती है, डिवाइडेड होता है स्टेयरकेस। जी। आधे लोग ये यूज़ करते हैं, आधे लोग ये, तो उसमें स्पेस कंजर्वेटिव हो जाती है चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे आपको घूम कर दिखाऊँ, अभी मैं जैसे स्टेयर से ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो ये मेन स्टेयर केस है जिससे आप नीचे जा रहे हैं। आप लिफ्ट को भी यूज़ कर सकते हैं और ये इतना ग्रैंड है कि इससे बहुत लग्जरी लुक एंड फील आता है आपको। और यहाँ से हमने एंटर किया था, ये देखिए जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। और अब मैं आपको यहाँ से ऊपर लेकर चलता हूँ। हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये एंट्रेंस डोर है, ये इतना वाइड। यस, यू कैन सी द हाइट ऑफ डोर। जी। अब हम ऊपर चलते हैं यहाँ से। और मतलब अगर मैं फर्स्ट फ्लोर में आया हूँ, मुझे सीढ़ी चढ़ के भी आने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। बिल्कुल। हाँ, ग्रैंड एंट्रेंस है, स्टेयर के सामने दी है। अगर आप लिफ्ट यूज़ करना चाहें लिफ्ट यूज़ कीजिए, आप स्टेयर यूज़ करना चाहें तो स्टेयर्स यूज़ कीजिए। फिलहाल ये डमी लिफ्ट है, तो अभी मैं आपको लिफ्ट के अंदर तो नहीं दिखा सकता हूँ, बट जब इसका ओरिजिनल बन जाएगा तब मैं आपको ज़रूर लेकर चलूँगा लिफ्ट के अंदर। और ये अगर कोई आ जाता है, नीचे से गार्ड अलाउ कर देते हैं या आप अलाउ कर देते हैं, तो उसके बाद भी ये फीचर है कि आप यहाँ कैमरा के थ्रू देख सकें। बिल्कुल, जैसे जनरली नॉर्मल डोरबेल होती है जी। आप डोरबेल बजाते हैं तो आपको डोर खोलना होता है। जी। यहाँ पे जैसे आप डोरबेल बजाते हैं तो अंदर जो VDP आप स्क्रीन पे दिख जाओगे, उसके बाद ही आप अंदर। तो ये तो एक और एडिशनल फीचर हो गया। ओके। और यहीं से अगर आप देखें तो ठीक इसी तरीके से आप यहाँ से वापस ऊपर जा सकते हैं। तो ये जो फीचर है स्टेयर्स का, ये जैसे नीचे आपने देखा था वैसे ही ऊपर है। और जितने भी फ्लोर में आप जाएंगे, अगर स्टेयर केस का यूज़ करते हैं तो आपको ऐसे ही स्टेयर केस ऊपर तक मिलेंगे। अब यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊँ चारों तरफ घूम कर, ये देखिए, तो एक अपार्टमेंट का डोर यहाँ पे है और दूसरे अपार्टमेंट का डोर यहाँ पे है। तो जैसे होता है ना कि अगर आपके डोर्स ओपन करा आपने तो आपको सामने वाले घर का दिखता है सारा कुछ। यहाँ पे वो प्रिवेसी कंसर्न नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मोहित जी कि जो आपका डोर है उसमें भी कोई डिजिटल लॉक लगा हुआ है। यस जी। ये स्मार्ट डिजिटल लॉक्स हैं। ओके। तो आप किसी कीज से या इसको तोड़ के या एंटर नहीं कर सकते आप। ओके। आपके पास यू हैव टू हैव पासवर्ड और यू हैव स्मार्ट कार्ड। अच्छा, Yes. तभी आप एंटर कर पाएंगे। और अगर मैं इस तरफ घूमूं तो दोनों अपार्टमेंट का जो डोर दिख रहा है उसके बीच में ये क्या चीज़ है, जहाँ मुझे ऊपर कैमरा भी दिख रहा है लगा हुआ, और ये क्या है सामने? ये जनरली वैसे तो शाफ्ट होती है, बट हमने यहाँ पे जो आपको किसी भी बिल्डर फ्लोर में आज तक आपने सुना भी नहीं होगा, यहाँ पे हम फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगा के दे रहे हैं पर फ्लोर पे। ओके। वो आपके पर्सनल आप यूज़ कर सकते हो, मतलब कभी डिजास्टर होता है, कभी जरूरत पड़ती है जी। तो आपके डोर पे बिल्कुल कोई चीज़ें ये आप इसमें लगा के दे रहे हो, बट Yes. नॉर्मली तो ये हाई राइज बिल्डिंग में ही लगा होता है। हाँ जी। इवन गवर्नमेंट भी बोलती है कि हाई राइज बिल्डिंग में होना चाहिए, जो भी एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर की बिल्डिंग हो। फ्लोर्स में तो मैंने ये ऐसा देखा नहीं है अभी तक। मैंने इसलिए बताया कि ये सबसे यूनिक फीचर है, ये जनरली होता नहीं है किसी फ्लोर पे। जी। फ्लोर का प्रोजेक्ट में तो हम आपको लगा के देंगे। तो इसके लिए आप क्या एडेड चार्जेस ले रहे हो? नो नो, इट्स अ पार्ट, इट्स इंक्लूडेड इन दी ओवरऑल प्राइस। ओके। और मैं आपके डोर की विड्थ और हाइट देख रहा हूँ तो ये भी काफ़ी
लंबा और चौड़ा है, विच मीन्स कि कोई भी फर्नीचर इजीली अंदर चले जाएगी। हमने कोशिश की है वॉल टू वॉल एक्सेस देने की, जितना ग्रैंड एंट्री हम दे सकें, क्योंकि अगर आपकी एंट्री छोटी होती है तो आपका फर्नीचर या बड़ा कुछ अगर आप लेके आते हैं घर में तो एंटर नहीं प्रॉब्लम होती है। राइट। मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे यहाँ पे मुझे ये आपने फायर फाइटिंग के एक्सेस दिया है, अंदर से भी कोई एक्सेस है? कुछ अपार्टमेंट्स में है, कुछ में नहीं है। ओके। तो जो छोटे अपार्टमेंट्स हैं उनमें नहीं है। ओके। जो आने वाले हैं उसमें आएगा। ओके, तो हम यहाँ से अंदर चलते हैं। आइए। ओके, सो ये हमने एंटर किया और मैं आपको सबसे पहले तो चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ। पहले हम किस रूम में जाने वाले हैं? जनरली होता क्या है ना, वॉल शेयरिंग होती है बेडरूम्स की जी, वॉशरूम्स की वॉल शेयरिंग होती है जी। तो यहाँ पे आप जो लेआउट देखेंगे, यहाँ पे जो 3 बेडरूम है वो तीनों प्लॉट के अलग अलग कॉर्नर पे है। अच्छा, किसी भी बेडरूम की वॉल दूसरे बेडरूम से शेयर नहीं है। वॉशरूम शेयर होगी? वॉशरूम की भी कोई, सबका इंडिपेंडेंट अपना प्राइवेट वॉशरूम है। ओके। और बेडरूम जो है कॉर्नर्स पे है तीनों। अच्छा, सो हम यहाँ से एंटर करते हैं और उसके बाद ये पहला रूम आता है। फर्स्ट बेडरूम। ओके, मैं देख रहा हूँ काफ़ी नेचुरल लाइट है। ऑलरेडी विंटर्स है और बाहर फॉग है, बट नेचुरल लाइट फिर भी है। मैं यहाँ पे आपको चारों तरफ एक बार घूम कर दिखाता हूँ। यहाँ से आप बालकनी में जा सकते हैं, ये आपका वॉशरूम। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ अगर तो ये चारों तरफ आप देख लीजिए। इसमें मैं देख रहा हूँ बाहर वाला जो था वो क्या मार्बल लगाया आपने? बिल्कुल इटालियन मार्बल लगाया हमने। अच्छा, और यहाँ रूम्स में ये लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग है। ओके, ये हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, बट ये फर्नीचर्स नहीं होंगे जो हमें दिख। मूवेबल फर्नीचर पार्ट ऑफ इंटीरियर, ये जो आप देख रहे हैं ये सब नहीं होगी, प्लेन वॉल्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो वॉल्स हैं, वॉल्स ये सब आप ऐसे ही करके देंगे या प्लेन होगा? नहीं, ये प्लेन वॉल्स रहेंगे। प्लेन वॉल्स होगा। मैं एक बार आपको चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ ये पूरा रूम। और यहाँ से अगर आप देखिए तो ये बालकनी का एक्सेस एंड वॉशरूम में चले। बिल्कुल जी। वॉशरूम में आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं ये सेम आपको मिलेगा। ये आपका बेडिंग एरिया, ये आपका WC, ये सिंक एरिया, ये सब कुछ जितना कुछ दिख रहा है मुझे वॉशरूम में, ये सेम टू सेम सब कुछ सेम मिलेगा। यू कैन सी वॉशरूम इज क्वाइट बिग। तो काफी यहाँ पे बड़ा। वैनिटी जी, ये पार्ट नहीं रहेगा। ओके। बाकी जो आप देख रहे हैं एज इट इज रहेगा। ओके। और आपने नोटिस किया है अगर आपकी जस्ट पीछे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, हाँ मैं देख सकता हूँ काफी लाइट आ यहाँ रही पे है। हमने वेंटिलेशन के लिए एक विंडो भी दी है। ओके, नॉर्मली हम एक एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं। एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, लेकिन आपने वेंटिलेशन के लिए विंडो भी दिया है। ओके, एंड ऊपर फॉल सीलिंग यस, कि तोड़ फोड़ की जरूरत ही ना हो अगर कुछ हाँ जी। लीक करता है कभी तो। ओके, अब हम कहाँ पे चलने वाले हैं? फर्स्ट बेडरूम हमने देखा जी। अब हम देखते हैं ड्राइंग रूम एरिया, जो जनरली सबसे ज्यादा यूज होता है। सो ये आपका ड्राइंग रूम एरिया है और यहाँ पे पूरा देखने से पहले एक बार मैं आपको टर्न करके चारों तरफ दिखा देता हूँ। ये देखिए, और सनलाइट यहाँ पे भी प्रॉपर है, यहाँ से भी सनलाइट आ रही है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे टर्न करूँ, देखिए ये भी बालकनी एरिया है, यहाँ से भी प्रॉपर सनलाइट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मोहित जी, तो ये आपका लिविंग एरिया है सामने, ये बालकनी, और यहाँ पे ये डाइनिंग स्पेस। आपने अगर नोटिस किया है तो जो ड्राइंग रूम है जी, इसके सामने का फ्रंट देखिए, फ्रेम देखिए, विंडो देखिए आप, ये वाला सही। तो एंड टू एंड पूरा हमने फ्रेम दिया है यहाँ पे ग्लास के साथ। जी, ठीक है। ये टफन ग्लास है। ये टफन ग्लास है, इससे आपको एक तो नॉइज प्रूफ है, हीट प्रूफ है, टिंटेड ग्लास है, और इससे आपको सनलाइट अंदर आएगी बट आपको हीट अंदर नहीं आएगी। ओके, ठीक है। दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो हमने एक वहाँ पे भी एक्सेस दिया है बालकनी का भी, और वहाँ पे भी विंडो लगाया है जिससे आपको क्रॉस वेंटिलेशन मिल सके जी, और ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिल सके। हाँ मैं देख रहा हूँ, अगर मतलब नॉर्मल जो लाइट जली हुई है अगर इसको भी ऑफ कर दे तो प्रॉपर सनलाइट दिखती है मुझे, जबकि आज फॉगी है बिल्कुल। डे। ओके, तो अब हम बालकनी में चलते हैं। यस प्लीज। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये इनका बालकनी एरिया है। यहाँ पे भी आपने ये वुडन टाइल्स है, वुडन फ्लोरिंग है बालकनी में। ये वुडन टाइल्स है। ओके, सो बालकनी अगर मैं देखूं तो एक आपका एक्सेस है मेन लिविंग एरिया से।
बालकनी में आने का। जी दूसरा एक्सेस आपका वो मुझे मेरे ख्याल से दूसरा रूम है। जी एंड जिस रूम में अभी हम थे वो वहाँ का एक्सेस इधर से है, बिल्कुल। राइट। तो मतलब इस बालकनी की एक्सेस तीनों जगह से है। अलग अलग पार्टीशन करने की बजाय जिससे स्पेस खराब होता है आपका, जी एक्सेसिबल नहीं होती चीज़ें, जी। तो हमने बड़ी बालकनी बनाई है जिससे जो यूज़फुल है और आप दोनों बेडरूम से और ड्राइंग रूम से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके। अगर मैं कैमरे में जैसे देख सकता हूँ तो काफ़ी ग्रैंड व्यू आ रहा है कि आप बालकनी में खड़े और बहुत बड़ी सी बालकनी है। आपने अगर नोटिस किया हो तो जनरली हम अगर बालकनी में खड़े हैं जी। तो या तो हम साइड से या फ्रंट से किसी ना किसी दूसरे की बालकनी में देख रहे होते हैं, राइट, या हमें कोई देख रहा होता है। जी। जो हमारी बालकनी का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अपार्टमेंट के अंदर की तरफ है, ओके। जिससे आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक बालकनी है तो इस अपार्टमेंट के दूसरी तरफ जो बालकनी होगी वो दोनों आपस में देख नहीं सकते एक दूसरे को, तो आपको प्राइवेसी मिल जाता है पूरा। ओके, ग्रेट ग्रेट। अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं और ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये लिविंग एरिया वापस आ गए। और लिविंग एरिया के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका डाइनिंग एरिया है पूरा। यहाँ पे भी मैं आपको एक राउंड लेकर दिखा देता हूँ। देखिए आगे जो आप देख रहे हैं वो आपका लिविंग एरिया था, और उसके बाहर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो बालकनी एरिया था जहाँ पे अभी हम थे, और हम यहाँ तक आए। काफ़ी ह्यूज स्पेस है ये। जितना यूज कर सकते हैं हमने कोई भी स्पेस, कोई भी पार्ट यूजलेस नहीं छोड़ा है। यहाँ पे हमने एक एक इंच को अच्छी तरीके से मेजर किया है और यूजफुल बनाया है उस चीज़ को। ओके, काफ़ी ग्रैंड लुक आता है इससे। यस। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, देखिए इससे पहले वहाँ पे जो आपको एलईडी स्क्रीन दिख रहा है हम उसके पीछे वाले रूम में थे। एंड देन ये बालकनी एरिया और ये सारा आप स्पेस देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्रॉस वेंटिलेशन और लाइट्स प्रॉपर हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ। आप उसको लाइवली फील भी करेंगे जब आप रहना शुरू करेंगे। जी, एक्चुअली आपने सैम्पल फ्लैट जो है वो बनाया बहुत खूबसूरत है कि कोई भी आए उसको पसंद आ जाए। बिल्कुल, ये हमने एज ए सैंपल बनाया है, पर आपको जो फील है, लग्जरी फील है जी, वो इसी तरीके से है। काफ़ी अच्छा है। अब तो हमने एक रूम देख लिया और उसके बाद हमने लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया भी देख लिया, एक बालकनी भी देख लिया। अब हम कहाँ पे चलने वाले हैं? मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट बेडरूम होता है। ओके, तो मैं एक बार टर्न ले लेता हूँ। मैं मेरे पीछे ये मास्टर बेडरूम, तो यहाँ पे देखिए ये डाइनिंग स्पेस था, वो लिविंग एरिया था। अब हम यहाँ पे चलते हैं, ये मास्टर बेडरूम है जहाँ पे मोहित जी खड़े हैं। इसको मास्टर बेडरूम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है। ओके, सबसे ज़्यादा यूज होता है और सबसे ज़्यादा स्टोरेज हमें इसमें चाहिए होती है। जी, तो हमने स्टोरेज के लिए अलग से वॉक इन वार्डरोब्स यहाँ पे बनाए हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ, और ये काफ़ी बड़ा है। हाँ जी, वॉशरूम भी यहीं पे है आपका? बिल्कुल, वॉशरूम भी यहीं पे है। ओके, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आपने ग्लास से पार्टीशन भी दिया है वॉशरूम के अंदर। जी जी, यहाँ पे ग्लास से पार्टीशन भी है। एंड देन आपने ऊपर तक पूरा टाइल्स लगाया हुआ है। ऊपर तक पूरा टाइल्स लगाया है। ये आपको बार बार मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, सीपेज नहीं आएगी आपके वॉशरूम्स में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने विंडो दी है, और यहाँ पे उससे डबल साइज विंडो है। हाँ जी। ओके, एंड यहाँ पे भी नीचे जो आपकी वैनिटी दिख रही है वो नहीं होगी? नहीं, काउंटर्स रहेंगे आपके, WC और आपका वॉश बेसिन रहेगा जी, बाकी और मिरर भी रहेगा, बाकी सारा कुछ होगा यहाँ पे एक्सेप्ट दी एक्सेसरीज। ओके, एंड ये आपका वॉकिंग क्लोजेट, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए नीचे फ्लोरिंग वुडन है। जी, आपको लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलती है। ओके, इसमें भी प्रॉपर लाइट है। पहले मैं आपको चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ग्लासेस दिए हुए हैं, यहाँ से भी आपको सनलाइट आता है। देन ये बालकनी में जाने का एरिया, जिस बालकनी में हम गए थे वहाँ पे ये कॉमन एक्सेस है। एंड इस जगह से हमने एंटर किया था। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ प्रॉपर सनलाइट है चारों तरफ। एंड इवन अगर हम खिड़की खोल दें तो प्रॉपर वेंटिलेशन भी है। बिल्कुल, जो सबसे जरूरी है आज की डेट में, सनलाइट और वेंटिलेशन सबसे जरूरी है जी। तो हमने कोशिश की है कि हम पूरा रूम को बंद करके वॉल्स बनाएं। हमने वहाँ पे बड़े फ्रेम्स दिए, बड़ी विंडोज दी हैं, जिससे जी इजीली ये सब चीज़ें मिल जाए आपको। ग्रैंड लुक आ रहा है, ग्रैंड लुक आ रहा है जी। ये तो हो गया मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम में एक और अच्छी चीज़ मुझे लगी कि ऐसा कोई अलमीरा सा नहीं है। जैसे नॉर्मली रूम्स में क्या होता है कि एक दीवार जो होता है वो पूरा अलमीरा के लिए यूज़ होता है, तो क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग वार्डरोब है तो आपका जो मास्टर बेडरूम है वो एक्चुअली में मास्टर बेडरूम है, बीच में कोई अलमीरा ये सब नहीं है।
बिल्कुल स्क्वायर आपको स्पेस मिलता है जी। एक्सेसिबल, कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको फर्नीचर नहीं दिखेगा या कुछ भी आपको वार्डरोब टाइप का कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे जी। उसके लिए हमने अलग से वार्डरोब बनाया। ओके, अब हम क्या देखने वाले हैं मोहित जी? थर्ड बेडरूम। ओके, सो यहाँ से हम मास्टर बेडरूम से बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलने के बाद ये डाइनिंग स्पेस के बाद ये है थर्ड बेडरूम। बट थर्ड बेडरूम में जाने से पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये नॉर्मल जो दरवाज़ा होता है उससे ज़्यादा चौड़ा दरवाज़ा है, तो ये भी क्या एंट्रेंस है, क्या है? हाँ, ये वॉशरूम जो है एक्चुअली ये कॉमन वॉशरूम है जो। अच्छा, ये वॉशरूम का है। मैं एक बार यहाँ पे अंदर जाकर दिखाता हूँ पहले। ओके, तो ये वॉशरूम दिख रहा है, ये देखिए, और काफ़ी स्पेशियस है। अगर मैं देखूँ, ये देखिए, इसमें भी टाइल जो है वो ऊपर तक लगी हुई है एंड देन वेंटिलेशन के लिए एक विंडो भी दिया हुआ है यहाँ पे। जी, आप कुछ बता रहे थे दरवाजे के बारे में। मैं दरवाजे के बारे में बता रहा था कि ये गेस्ट वगैरह जो आपके घर में जनरली गेस्ट होते हैं या घर में कोई एल्डर है जी, अगर कोई व्हील चेयर यूज करता है घर के अंदर, ओके, तो हमने उस चीज का भी ध्यान रखा है कि कई बार इमरजेंसी में बड़ा दिक्कत होती है, बड़ी मुश्किल होती है व्हील चेयर को बाथरूम के अंदर ले जाने के लिए। व्हील चेयर जो यूज करता है उसके लिए बाथरूम एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, हमने उसके लिए यहाँ पे ग्रैंड एंट्रेंस दी है, बड़ा दरवाजा दिया है और यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है। अच्छा, और इसमें यह भी है कि दो जने एक साथ अंदर जा सकते हैं वॉशरूम। अगर व्हीलचेयर कोई लेकर जा रहा है तो जो व्हीलचेयर में बैठे हैं वो भी इजीली अंदर जा सकते हैं, और व्हीलचेयर जो पकड़ के अंदर ले जाना चाहते हैं वो भी इजीली जा सकते हैं, जो अटेंडेंट है वो भी जा सकते हैं इसीलिए इतना प्रोवाइड रखा है। ग्रेट, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी वैनिटी जो नीचे दिख रहा है वो नहीं है, बाकी सारे चीज़ें हैं इसके पास। ओके, अब यहाँ से मैं एक बार रूम में जाने से पहले आपको बाहर से भी वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये देखिए, सामने वो मास्टर बेडरूम था, ये डाइनिंग एरिया, पीछे वहाँ पे बैल्कनी जहाँ पे मैं आपको लेकर गया था, और ये है कॉमन वॉशरूम एंड ये व्हीलचेयर फ्रेंडली है। और यहाँ पे जो पार्टीशन आप देख रहे हैं ये बहुत ही स्लाइड सा है, तो आप आराम से इजीली व्हीलचेयर को क्रॉस करके यहाँ से आगे अंदर जा सकते हैं। एंड देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एक और बेडरूम है, थर्ड बेडरूम। आपने वाकई स्टार्टिंग में जो बोला था कि कोई भी बेडरूम जो है उसके कॉमन वॉल्स आपस में नहीं है, ना ही वॉशरूम के कॉमन वॉल्स आपस में है। मैं एक बार आपको चारों तरफ ये घूम कर दिखा देता हूँ। मतलब मैं अभी तक जितने भी रूम में गया हूँ मुझे काफ़ी ग्रैंड लुक एंड फील आया है। एंड वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है क्योंकि विंडोज बहुत बड़े बड़े हैं, डोर्स बहुत बड़े बड़े ग्लासेस के डोर्स हैं। इसमें भी जितने ग्लासेस लगे हुए हैं यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जितने ग्लासेस हैं ये टफ एंड ग्लासेस हैं। ये बिल्कुल टफ एंड ग्लास है, हीट रेजिस्टेंट है और टिंटेड ग्लास है। ओके, एंड इवन बालकनी में जो आपने ग्लासेस लगाए हैं वहाँ पे नीचे, सो वो भी टफ एंड ग्लास है। बिल्कुल, वो भी टफ एंड ग्लास है और डबल ग्लेज ग्लास है। ओके, आइए मैं आपको बालकनी। जी, अच्छा, ये बालकनी कनेक्टेड नहीं है, ये प्राइवेट बालकनी है बिल्कुल। ओके जी, और वैसे ही दूसरी तरफ की वहाँ पे बालकनी है। ओके, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इधर भी बालकनी मुझे दिख रही है, और भी बालकनीज है यहाँ पे, या यही दो है? एक बालकनी हमने वहाँ पे देख लिया, एक बालकनी में हम खुद हैं, और यहाँ पे भी मुझे अपार्टमेंट के साथ कुछ बालकनीज दिख रही हैं। मेरे ख्याल से किचन की तरफ की किचन की यूटिलिटी बालकनी है। आइए मैं आपको दिखा दूँ। जी, किचन की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा से चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ। देखिए ये कितना ग्रैंड फील आ रहा है इसको देखकर। अब यहाँ से हम किचन की तरफ चलते हैं। अब किचन की तरफ जाने से पहले ये जो टाइल्स यहाँ पे लगे हुए हैं ये मार्बल है या टाइल्स हैं? ये इम्पोर्टेड इटालियन मार्बल है। ओके, और रूम के अंदर यहाँ पे भी जैसे मास्टर बेडरूम में भी अगर आपको मैंने दिखाया था तो वुडन फ्लोरिंग थी, लैमिनेटेड। यस, और यहाँ पे भी लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग है। यस, ओके, तो ये भी लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग है यहाँ पे, मतलब तीनों ही रूम में लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग है। यस, यस। और इसके अलावा जो कॉमन एरिया है यानी कि लिविंग एरिया या डाइनिंग एरिया, उसमें आपने इटालियन मार्बल दिया। ओके, और वॉशरूम के अंदर जो टाइल्स लगाए हैं उसमें क्या है? वो एंटी स्किड टाइल्स? एंटी स्किड टाइल्स। ओके, तो अब हम यहाँ से किचन की तरफ जाते हैं। मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं तो देखिए वहाँ से हमने एंटर किया था, मेन डोर वहाँ पे था, और ये डाइनिंग स्पेस है, और किचन के साथ मुझे एक और स्पेस दिख रहा है। ये क्या है?
आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक प्राइवेट बालकनी है ओके मल्टीपल यूज के लिए। ये एक तो इससे आपको घर में वेंटिलेशन अगर चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन, जी जी, उसमें भी काम आएगी। ऐसा तो नहीं है कि अभी आप खाली दिखा रहे हैं और बाद में आपने यहाँ पे वीआरवी वाला सिस्टम फिट कर दिया और ये ऑक्यूपाइड हो गया? नहीं, आप वीआरवी कहाँ है आपका? जनरली ये जो बालकनी होती है स्पेस होता है, यूटिलिटी के लिए होता है। ओके, हमने यहाँ पे इसको यूजफुल बालकनी बनाई है। कोई छोटा सा गार्डन भी बनाया चाहे यहाँ पे जो यूज कर सकते हैं, बट बाद में आप यहाँ पे वीआरवी वाला सिस्टम तो नहीं लगा देंगे? क्योंकि आपके यहाँ पे वीआरवी लगा हुआ है जहाँ तक मुझे पता है, बट वीआरवी का जो सिस्टम है वो कहाँ लगाया आपने? वो हमने टेरेस पे लगाया है। तो बाय डिफॉल्ट ही वो टेरेस में रहेगा या सिर्फ अभी के लिए टेरेस में लगाया? नहीं, वो हमेशा के लिए टेरेस पे ही लगेगा। उसकी जो मेंटेनेंस वगैरह है वो सब वहीं से एक्सेसिबल होगी। ओके ओके, ऑलराइट। तो ये एक और स्पेस दिखता है यहाँ पे बालकनी का, यहाँ पे देखिए। और इसी के साथ यहाँ पे ये जो वॉशरूम का आपको दिख रहा है, ये जो व्हीलचेयर फ्रेंडली वॉशरूम एंट्रेंस था वो ये वाला था, और अब हम यहाँ से बालकनी हो गया और ये किचन की एंट्रेंस हो गई यहाँ से। अब यहाँ से हम किचन के अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये किचन है यहाँ का। किचन में मैं देख रहा हूँ लाइट्स ऑन नहीं करके रखे हैं, बट फिर भी लाइट है प्रॉपर यहाँ पे। किचन में भी आप दोनों तरफ देखेंगे, दोनों तरफ आपको ग्लास डोर मिलता है, विंडो मिलती है जी। तो आपको नेचुरल सनलाइट यहाँ पे भी मिलेगी। मैं इस तरफ आ जाता हूँ, यहाँ से ज़्यादा प्रॉपर दिखेगा। ये देखिए, तो यहाँ पे भी आपको ग्लासेस लगे हुए हैं डोर्स में और विंडोज में, एंड देन इसके साथ एक कॉमन बालकनी है। ये यूटिलिटी बालकनी है, आप अपने वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ओके जी, ओके। तो यहाँ पे ये बालकनी, अच्छा यही वो बालकनी है जो हमें उस वाले बालकनी से दिख रही थी। ओके, तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन के पॉइंट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट? इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, वाटर पॉइंट्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे। ओके, एंड ये जितनी फिटिंग्स आपको दिख रही है किचन में, ये सब आप करके देंगे या ये आपने सिर्फ सैंपल के लिए बनाया? नहीं, ये हम आपको करके देंगे। आपको ये सारे काउंटर्स, ये आपको जो कैबिनेट्स हैं, सब कुछ मिलेगा, इवन इंक्लूडेड योर होब एंड चिमनी ऑल्सो। ओके, बट ये बस वाइट गुड्स में आपको रेफ्रिजरेटर यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, जो अप्लायंसेस आप देख रहे हैं ये सब नहीं मिलेगा, बाकी सब एज इट इज मिलेगा, कैबिनेट्स। ऑलराइट। ये जैसे यहाँ पे भी मुझे कैबिनेट दिख रहा है, तो ये भी आप बना के देंगे? हाँ, बिल्कुल। ओके, तो ये तो हमने आपका जो फर्स्ट फ्लोर है वो देख लिया। अब हमारे पास टेरेस बचा हुआ है और नीचे बेसमेंट बचा हुआ है देखने के लिए। अब हम कहाँ चलेंगे? जो मैंने आपको बताया था, चारों फ्लोर का बिल्कुल लेआउट सेम होगा, एग्जैक्टली सब सेम साइज होगा। बेसमेंट और टेरेस ये दोनों यूनिक चीजें हैं। जो फर्स्ट फ्लोर है उसके साथ आपको बेसमेंट मिलता है, जो फोर्थ फ्लोर है उसके साथ आपको टेरेस मिलता है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे हम किचन के अंदर गए थे, अब टेरेस में जाने से पहले मैं आपको एक बार चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बस एक राउंड ले रहा हूँ कि आपको वापस से रिकैप हो जाए। अब यहाँ से हम टेरेस की तरफ चल रहे हैं एंड टेरेस चल के आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या। मोहित, ये तो हम नीचे से टेरेस वाले एरिया में आ गए हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक तरफ का टेरेस जो है ना वो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है और एक तरफ का टेरेस नॉर्मल। ऐसा क्यों? हमने टेरेस को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ओके, मैंने आपको बताया था नीचे जो हमारी एसी की वीआरवी जो यूनिट्स होगी जी, वो कॉमन टेरेस एरिया में रहेंगी। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ये एक्सेसिबल नहीं है आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एसीज वगैरह और अदर यूटिलिटीज और सर्विसेज के लिए हमने स्पेस छोड़ा। जैसे सर्विस टेरेस का काम तो ये हो गया ना मोहित, कि अगर किसी को डिश टीवी भी अपना लगाना हो केबल कनेक्शन के लिए तो वो सर्विस टेरेस का यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सेकंड फ्लोर वाले ही इस टेरेस का यूज़ कर सकते हैं, या ये सब सारे फ्लोर्स के लिए? ये कॉमन है सबके लिए। यहाँ पे आप कोई भी यूटिलिटी, कोई भी सर्विसेज आपको एक्सेस करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि जो सर्विस टेरेस है वो कैसा है। अब हम एक्चुअल टेरेस देख लें जो मिलेगा, जो सेकंड फ्लोर बाय करेंगे उनको। ये लिफ्ट से वापस से एंट्रेंस है टेरेस तक का। आप देख रहे हैं स्टेयरकेस और लिफ्ट दोनों आपके टेरेस तक आते हैं जी, टेरेस तक एक्सेसिबल है। और ये यही लिफ्ट बेसमेंट में भी जाती है? हाँ जी। अब हम एक्चुअल टेरेस पे चले जो आप देने वाले हैं। हाँ जी, आप देख सकते हैं बहुत ह्यूज एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है, अपने तरीके से डिज़ाइन किया है। आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। इसका अपने तरीके से आप जितना ग्रैंड इसको
यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। हाँ, मैं देख सकता हूँ अभी तो टेबल चेयर्स ये सब लगे हैं, तो आप ऐसे ही करके ये टेरेस बना कर देंगे? हाँ, हम आपको जो है ये एंटी स्किड वुडन फिनिशिंग टाइल्स देके लगा ओके। के और आर्टिफिशियल टर्फ भी लगा के देंगे हम आपको। और जैसे वहाँ पे लगा हुआ है वो ग्रीन वाला आर्टिफिशियल टर्फ और यहाँ पे लगा हुआ है, राइट? ये सब हम लगा के ये आप लगा कैसे देंगे? बाकी जो मुझे गार्डनिंग करनी है या ये सब कुछ करना है वो मैं अपने हिसाब से चॉइस से कर सकता हूँ, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, नहीं कोई, राइट? एंड यहाँ पे ये जो रेलिंग्स जैसे आपने लगाए हुए हैं सेफ्टी के लिए, तो ये ऐसे ही रहेगा। ये ऐसे ही रहेगा। सो ये डिवाइडर है बिटवीन योर सर्विस टेरेस एंड योर ओन टेरेस। ओके, मैं आपको एक बार चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ कि आपको भी समझ में आ जाए कि टेरेस कैसा है यहाँ पे। ये देखिए, ये आपका टेरेस। एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे गर्मियों में ऐसा देखा है कि जो टॉप फ्लोर होता है उसमें गर्मी बहुत होती है, आपने उसके लिए भी कुछ किया कि जो टॉप फ्लोर लेगा इसमें, जो 4th फ्लोर लेंगे यहाँ पे, उनके घर में उनको गर्मी ना लगे या ऐसा ना हो कि उनको 24 घंटे एसी चलाना पड़ जाए गर्मी की वजह से, उसके लिए आपने क्या प्रोविजन किया हुआ है यहाँ पे? एक्चुअली टेरेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे गर्म हो जाते हैं टेरेसेस, जी। काफ़ी पड़ती है, तो हमने उसका यहाँ पे किया है सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने गैप दिया है, उसके बीच में इंसुलेशन किया है। ओके। एक्चुअल फ्लोरिंग आप देख रहे हैं, इसके और उसके बीच में अराउंड 5 to 6 इंच का गैप है। ओके, इंसुलेशन किया है हमने। अच्छा। उससे आपके हीट भी नहीं होगी और गर्म भी नहीं होगी। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये जो फ्लोर जहाँ पे आप खड़े हुए हैं जी, इसके बीच में और जो और फ्लोर है, जो नीचे से हम सीलिंग देख रहे थे, उसके बीच में इंसुलेशन किया हुआ है आपने, सो दैट अगर धूप यहाँ पे पड़ती भी है तो जो आपके सीलिंग वाली फ्लोर है वहाँ तक तो गर्मी पहुँचे ही ना। नेवर। ओके, वेरी गुड। तो ये अब हमने टेरेस भी देख लिया, छोटा सा टेरेस गार्डन बना हुआ है। आप इसको अपने तरीके से ब्यूटीफाई कर सकते हैं, अपने तरीके से रख सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा इसको लुक एंड फील दे सकते हैं, बट इसमें कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं है इसके ऊपर। नहीं, कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। जी। आप वैसे जनरली जो स्विंग्स वगैरह आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, वो इजीली, बहुत बड़ा स्पेस है ये। जी, अब हमने टेरेस भी देख लिया, अब हम बेसमेंट में चलें। यस प्लीज। ओके, बेसमेंट में जाने से पहले एक बार मैं आपको वापस से चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ। देखिए, ये पूरा टेरेस का लुक एंड फील है। तो जिनका टॉप फ्लोर होगा उसको यहाँ पे टेरेस मिलता है, और जिनका फर्स्ट फ्लोर होगा उसके साथ बेसमेंट मिलता है। तो अब हम फर्स्ट फ्लोर के बेसमेंट को देखने वाले हैं। जो फर्स्ट फ्लोर के साथ बेसमेंट मिलेगा हम वहाँ जाने वाले हैं। ये देखिए, इस स्टेयरकेस से मैं नीचे जा रहा हूँ और ये बेसमेंट का एरिया है पूरा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सनलाइट आ रहा है प्रॉपर। मैं आपको एक बार चारों तरफ घूम कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ग्लासेस का बहुत यूज़ किया है आपने यहाँ पे, सनलाइट के लिए की है जी। तो ये हम बेसमेंट में आ गए। बेसमेंट तक लिफ्ट आती है, आपने बताया था, और दोनों ही तरफ यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो लिफ्ट है, आप सीधा बेसमेंट तक आ सकते हैं अपने फ्लोर से। अब हम किस तरफ चलेंगे? जिस बेसमेंट की हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर के साथ हम बेसमेंट प्रोवाइड कराएंगे जी, तो वो बेसमेंट आपको एक्चुअल कैसा मिलेगा, कितना स्पेस मिलेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके। उसकी एंट्रेंस एज ग्रैंड एज जैसे हमने ऊपर दिखाया था, राइट। उसी तरीके से एंट्रेंस रहेगी। तो यहाँ पे मैं बेसमेंट के अंदर आ गया हूँ। ये तो बड़ा सा हॉल है। हाँ जी। तो ये आपने क्या पार्टी प्लेस के लिए बनाया है, या यहाँ पे भी मैं रूम्स बना के एडिशनल रूम यूज़ कर सकता हूँ? अगर मेरी फैमिली बड़ी है, मान लेते हैं मैं बिग फैमिली में रहता हूँ, तो ऊपर के तो 3 रूम हैं ही, तो क्या मैं इस हॉल को भी, ये जो बड़ा सा हॉल दिख रहा है मुझे, इसको भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ रूम बनाकर? हम आपको खाली स्पेस देंगे। ओके। आप इसको जिस तरीके से मर्जी यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसका थिएटर बनाइए, आप इसको किड्स प्ले एरिया बनाइए, आप इसको होम जिम में कन्वर्ट कीजिए, आप इसको ऑफिस में कन्वर्ट कीजिए, जो आपका मन करोगे। ऑफिस मतलब होम ऑफिस, नॉट फॉर कमर्शियल यूज? नॉट फॉर कमर्शियल ऑफिस जी, फॉर पर्सनल यूज। मैं आपको एक बार चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ। काफ़ी ह्यूज स्पेस है, बट मुझे यहाँ पे कहीं वॉशरूम नहीं दिख रहा है। वॉशरूम नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ वॉशरूम जनरली हम बना के नहीं देंगे, बट हम आपको प्रोविजन देंगे डेफिनेटली। सो मतलब अगर मैं यहाँ पे रूम बनाता हूँ या यहाँ पे मैं चाहूँ तो 1-2 वॉशरूम बनाना चाहता हूँ, तो वो प्रोविजन आपने ऑलरेडी किया हुआ है? बिल्कुल हमने किया हुआ है, वेट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, मैं इस एंड से दूसरे एंड चलता हूँ। यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड में देख रहा हूँ, यहाँ पे भी आपने सिटिंग एरिया दिया हुआ है। यस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बेसमेंट एक्चुअली। ओके। जनरली बेसमेंट होता क्या है कि आपको एक अंडरग्राउंड डाउन टाइप का एक बेसमेंट मिल जाता है जी, यूजलेस होता है वो, उसमें कभी भी ना तो सनलाइट आती है ना वेंटिलेशन होता है जी, उसको यूज नहीं कर सकते। ओके। हमने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है जिसको संकन बोलते हैं, हाँ, हाँ, कॉन्सेप्ट यूज किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे जो बड़े फ्रेम लगा के ग्लास लगा के एक्सेस जो आपको दिया है वो ओपन टू स्काई है। हम बेसमेंट में हैं बट आपको फील नहीं आएगा कि हम बेसमेंट में हैं। आइए। हाँ, मैं देख सकता हूँ सनलाइट भी आ रहा है वहाँ पे। ओके, यहाँ पे भी आपने वुडन फ्लोरिंग दिया है या वुडन टाइल्स है ये वुडन टाइल्स है, वुडन हाँ, वुडन फ्लोरिंग तो बारिश में फिर खराब हो जाएगी। बिल्कुल। ओके, तो अभी हम इस हॉल के अंदर थे। देखिए, हम इस हॉल के अंदर थे
यहाँ पे, और अब हम ओपन टू स्काई वाले एरिया में आ गए हैं इस जगह पे। यहाँ पे भी आप छोटा सा गार्डन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे गार्डन भी देख रहा हूँ पीछे। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, यहाँ से ये जो एरिया है ये गार्डन का एरिया है छोटा सा। आप यहाँ पे चाहें तो वर्टिकल गार्डन्स भी बना सकते हैं यहाँ पे हम, राइट? जी, आपका पर्सनल स्पेस है, आप अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सुपर। एंड आप ओपन टू स्काई जो बोल रहे थे वो मैं चेक कर रहा था कि ओपन टू स्काई है या नहीं है। वेरी नाइस, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी एम्पल सनलाइट है यहाँ पे। मैंने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है, हमने यूजफुल रहेंगी आपके लिए। जी, तो हमने इस वीडियो में कोशिश किया कि आपको सब कुछ दिखा दूं। अगर फर्स्ट फ्लोर आप ले रहे हैं तो उसके साथ जो बेसमेंट होगा वो एरिया कैसा होगा वो भी आपको दिखा दूं। अगर आप टॉप फ्लोर ले रहे हैं तो उसके साथ टेरेस एरिया कैसा होगा, कॉमन एरिया कैसा होगा, एंट्रेंस कैसी होगी, आपकी गाड़ी कहाँ पार्क होगी, सब कुछ हमने कवर कर दिया है। अभी भी कुछ लगता है मोहित की छूट गया हो जो मैंने आपसे नहीं पूछा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता हमने कोई ऐसी चीज़ छोड़ी है जो कवर नहीं की है। जी, हमने आउटफिट से लेके इंटरनल स्पेसिफिकेशंस, एमिनिटीज सब कुछ डिस्कस किया है। जी, ऐसा हमने कवर तो सारा कुछ कर लिया। अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ बताना भूल गया होगा या इस वीडियो में कवर हम नहीं कर पाए तो नीचे मोहित का नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मोहित से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और अगर आपको साइट विजिट करके ये अपार्टमेंट्स को देखना है या ये फ्लोर को देखना है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके मोहित से बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।